नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज राधा स्वामी सत्संग सभा की उत्तर प्रदेश इकाई के माध्यम से समाज और विज्ञान पर जो कार्यक्रम दूसरे दिन आयोजित किया गया, उस पर हमने आज फिर वीडियो तैयार किया है। इसमें आज नटसेल में मैं बता दूं कि आगरा की ब्रांच विजयी रही, जिनको राधा स्वामी सत्संग सभा के प्रेसिडेंट गुरु स्वरूप सूद साहब ने उनको पारितोषिक वितरित किए और दूसरे लोग भी जो जिनको कुछ कार्यक्रम अच्छे हुए थे उनका भी नंबर आया, उनको भी उन्होंने इनाम दिए। और उसके बाद बाहर की कुछ ब्रांचें थी, उन्होंने भी अपने अपने जहाँ कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पर सभी को पारितोषिक वितरण किए। तो अब हम दिखाते हैं गुरुस्वरूप सूद साहब जब एंट्री की तो उनकी एक बच्चे द्वारा पुष्प गुच्छ दे करके उनका सम्मान किया गया। और उसके बाद फिर हमने इसमें पूरा कार्यक्रम कवर किया। इसके बाद गुरुस्वरूप सूद साहब से भी एक इंटरव्यू लिया सुरेखा यादव जी ने, वो भी हम इसमें दिखाएंगे। और उनकी वाइफ भी कुछ बोलना चाह रही थी तो उनको भी सुरेखा यादव जी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। तो आप इसमें देखिए मेरे इस वीडियो को। और वीडियो चूँक लंबा होगा क्योंकि ये बहुत लंबा कार्यक्रम था, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बाद में ये सारी वीडियो देखिए। तो थैंक यू। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। राधा स्वामी सत्संग सभा के प्रेसिडेंट सूद साहब का स्वागत किया गया। एक मिनट दीजिए, लॉन्च कर। ऐसी गिलास नहीं लाए थे। We are compiling the meeting section results before we start the closing ceremony.
To the culmination of our science competition. It has been only a year race that we were able to organize this event in our region with such great enthusiasm. For the past weeks, we have better celebrated the unity and ingenuity of our participants as they delve into their own science, passions and faith. It is an honor to have President Bhagai as the chief guest of today's event. We welcome him along with his wife to today's celebration. I would also like to welcome the other distinguished guests. Represent President Bhagai Maharaj, officials from the region of BRSA, UPRSA regional members, branch and district secretaries, as well as parents, volunteers, mentors, coordinators, IT team, our team is there here, as well as connected with us online. Without that compound support and dedication, we would not have been able to organize this event. Today we gather to honor the remarkable achievements of our scientists, celebrate their travel efforts, and applaud their unwavering commitment to excellence. Each participant has contributed to the vibrant state of ideas and knowledge, enriching our community with their curiosity and creativity. So without further ado, let us
of our very scientists. To all the participants, congratulations on the job well done. And thank you for inspiring us all with your boundless enthusiasm for science. Let's watch a short video on UPR theater and let the celebration begin. By its grace, UPRSC has been successfully conducting 2 science sessions for children each month since October 2023. To further instill a scientific temper in children and take the learning a step ahead, a regional level science exhibition and competition was proposed with the broad theme of science, satsang and society. रीजनल लेवल पर समय समय पर बच्चों के लिए विभिन्न रोचक सेशंस और कॉम्पिटिशन्स यूपीआरएसए द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के साथ साथ विज्ञान साक्षरता एवं सत्संग कल्चर की भी जानकारी मिले। रीजनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सत्संग की एक्टिविटीज में शामिल करना। दूसरा, रीजन के कुछ रूरल या रिमोट क्षेत्र हैं उनके बच्चों को भी समान अवसर उपलब्ध कराना। Lot of participation was made in January 2024, and it has been heartening to know that 350 children distributed across 59 teams are participating in this event. Working in teams will instill the values of Sahyog, Sangathan and Safalta in children by providing them opportunities to cross-learn from their peers and further their interest in science, satsang and society. The region has been divided into 5 clubs to host the district level competitions on April 21st and April 28th, 2024, and the winners from these events will be competing in the regional level competitions scheduled for May 4th and 5th, 2024. सत्संग एंड सोसाइटी जिसमें कि हम अपने जीवन के डे टू डे लाइफ चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को साइंस की दृष्टिकोण से सॉल्व करें, और वो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सत्संग के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। The regional science day was a dynamic fusion of innovation and collaboration, featuring diverse models from primary, middle, and senior level students in both physical and online formats. The competition across hubs added an exciting dimension, showcasing the creativity and talent of young scientists in a hybrid environment. ये देखा गया है कि थोड़ी सी मेंटरिंग से ही कुछ रिमोट ब्रांचेस के बच्चों ने कुछ महीने पूर्व हुए चेस जैसी कॉम्प्लेक्स गेम के कंपटीशन में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। मालिक की अपार दया से जहां 1 साल पहले रीजनल लेवल कंपटीशन में 30-40 बच्चे भाग लेते थे, वहां आज साइंस डे में करीब 350 बच्चों ने भाग लिया। थैंक यू, ये मुझे याद है। द्वारा हमें ये फीडबैक मिली है कि बच्चों में जो बच्चे सत्संग में बहुत कम दिखाई देते थे, वो इस साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए ब्रांचेस में आ रहे हैं। और I will request the IT team to now make the award ceremony with please. Officials, parents, guardians, mentors और प्यारे बच्चों, आपका प्रोग्राम का शॉर्ट वीडियो देखा, देख के बहुत खुशी हुई कि आपने अपने इतने मॉडल्स बनाए अलग अलग तरह के, उससे कि आपकी लर्निंग हुई,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि सीखना सिर्फ पढ़ने पढ़ने से नहीं होता है, उसको करके अपने हाथ से जो आपसे मुद्दा होगा थिंकिंग है, आपके हाथ सोचते हैं कि आपके अपने स्कूल चुके वो चीज़ बने वर्किंग मॉडल है या नॉन वर्किंग मॉडल है, लेकिन आपको वो एक आइडिया देता है और उसकी इम्प्लीकेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी एक्टिविटी आपकी वाली करी ये विशेष थी जो आप सबको कम्युनिकेट करिए सामने और उसके फॉलोअप में आपके रीजन में आपके रीजन को सबको हमारे मानना चाहूँगा कि आपने विशेष डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से माना उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके लिए कभी गाइडेंस किया कि आपके पूरा प्रोग्राम इतनी फिटनेस फ्रीक्वेंसी करने के बाद कि आपके साथ रखते हैं ताकि आप प्रति सप्ताह आपको इसके बारे में और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए एक साइंस सेंटर आपका वैज्ञानिक कम्युनिकेशन है वो एक इंटरमीडिएट के अंदर ग्रो करती है और एक और जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आप इस भाषा के बारे में ये सोचिए कि जो भी काम हम करते हैं उसको अपने पर्सनली अपने ऊपर लागू करते हैं। जो आप पढ़ाई करते हैं उसको अपने ऊपर लागू करना, अपने परिवार भाई बहन माता के परिवार अपने अपने स्कूल में अपने एरिया में पूरे देश में दुनिया में वो कैसे उसका इम्पैक्ट ये सोचना बहुत जरूरी है। जब तक आपको हर दिशा से आयाम नहीं करेंगे तो आपके लगे में कोई गैप रहेगा। तो चलिए आज की तालीम ले लीजिए क्लाइमेट की बात करते हैं, इससे आपको क्या पड़ता है ऑर्डर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं या आपकी परिवर्तन पिघल रहा है आपको क्या करें ये चीज़ समझने की है कि ये आपके ऊपर कैसे आपके माहौल पे कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात सूरज का भी सूरज की गर्मी तो वही की वही इसमें हमने कुछ गड़बड़ की क्या जरूरत है सोचिए एक मोटे बदलता है आपने आप उसको आपने जो ऑयल के काबू उसको आपने जला दिया, चाहे आपने कार के अंदर जाके पेट्रोल में नहीं जलाया या आपने किसी फैक्ट्री में जलाया या कहीं और आपने जलाया, तो उसका जो असर है उसकी वजह से जो आपके जलने से जो कार्बन निकलता है उसको जी आपने जो
मुस्लिम की वजह से मतलब उसका दूसरे नाम से हमने जिस बच्चे अगर जवाब देना चाहते हैं यमुना को यहाँ से पानी आता है उसका स्रोत ग्लेशियर से पानी ऐसे गंगा में पानी अगर वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाए जल जाए मर जाए अगर गंगा में पानी आ जाए क्या होगा पानी में
उनकी मैक्सिमम हाइट ज़्यादा एक प्लेयर सेंटर से इधर मैक्सिमम जैसे लेवल करता है आपका आपके उसका दूसरा लोग रहते हैं सारी तरह उसके अलावा पानी आनी ताज़ा पानी उसमें ऊँचा हो गया वो आपके आपका पीने का पानी होता है इसलिए शरीर मैंने आपको बिना पढ़ने जाओगा जब तक नहीं है कि मैंने डिग्री कुछ नहीं पढ़ना जो पड़ेगा और मॉरिशियस रहेगा पढ़ाई लेकिन पढ़ते पहले उसमें जाना है उसके बारे में आपको मुझे सबसे इम्पोर्टेंट आप जानते हैं फ्रांसिस का नाम फ्रांसिस न्यूटन 17वीं सदी में इंग्लैंड के ऐसे वो फेमस और फिलोसोफर पे बहुत और उस शेक्सपियर फ्रांसिस All the very best.
system is not clear. Lucknow team. And the second prize is jointly shared by team. Team Club. Can we have the next category? Excuse me. Yes, senior category it wasn't clear, audio was not clear, कौन winner है, कौन runner up है. Okay. There was some audio issues. G. So I repeat. Yeah. I will repeat. The top scorer of senior category is Lucknow team, and the runner-up is jointly shared by Noida branch team and Agra mixed group team. Just video play करिए. It's not clear. Announcing results first, and then we play the video. There are some ideas Okay. which is happening with the video. Okay, so announce the winner, runner up, whatever. Right. Last time go to the video again. G, correct. So we announce the winners as category wise and also announce the thematic winners. After that we play. Thank you. Senior branch category. The first winner was STP project Agra. Lots of applause for Agra. STP was Lucknow. STP project आपका का नहीं था. Please verify. STP project Lucknow. और ये सीनियर कैटेगरी है कि जूनियर कैटेगरी है? There is some confusion seems. Senior category. Usually are they special mention prizes? Yeah, there are special mention prizes. Yeah, so just to clear because it is creating some confusion here. So special mentions categories for senior categories are Best health content officer goes to Gut Night by Noida Best AI innovation artificial
सस्टेन So before we announce the media category, the video is ready. Can we have the video for the two categories? For his continued presence and all through our journey. It's his mission to work with his people to be kind, and he leads that is kind, and inspiring us in the humble initiatives of RSC. Our gratitude to President Sabha for being always present for guidance and support to RSC, and to encourage us with his special presence here today. Sir, we all feel thrilled and immensely motivated to DRSA Delhi, who are present today with us to encourage us. We are particularly elated to state that HRSA has joined hands with UPRSA in knowledge for children sessions, and we are jointly conducting monthly interaction sessions since February of this year. I am also delighted and excited to share that yesterday we opened our discussions with Georgetown, North America, collaboration with UPRSA in this initiative. I extend my gratitude to the judges for not only sparing their valuable time, but also providing valuable feedback to the participants, which all undoubtedly will help them grow and excel in their future. I extend my thanks to UPRSA regional members, district secretaries, branch secretaries for their unwavering support and cooperation throughout the planning and execution of this event. At last, I am immensely humbled by the dedication and commitment of the entire team of UPRSA mentors, parents, IT team. You are the strong muscle links of UPRSA and the workforce of Guru Radha Swami India. So, you would like to present that? Ji, so, ji, we'll wait for Okay. We have squash prepared by the Branch Mela Association as a gift for our chief guest. किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब के हाथों से। सभी यहाँ पर लाइन लगा के सबको पुरस्कार दे देंगे। सभी को प्रेसिडेंट साहब के हाथ से इनको पुरस्कार दिया जाएगा।
अभी सभी आ जाए यहाँ पे, मेंटर्स और ये सभी आइए, सब आ जाइए, आइए बहनी आइए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं, सहयोग किया है। ई कोऑर्डिनेटर, ई टीम भी, सीआरसी चार्जेस, गेस्ट महिला एसोसिएशन इंचार्ज सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहिबान, महिला एसोसिएशन इंचार्ज सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहिबान, सभी गेस्ट आइए। संदीप देखिए, आइए सर, आइए। इन सभी ने समय दिया, बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर सभी उपस्थित हुए। इन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम आइए, और मीडिया, और ये प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब के लिए बहुत ठंडा ठंडा काफी आपने मीडिया वाले आ जाए, आपको भी शरबत पक्का मिलेगा, 4 बोतल अभी देते हैं। आप भी आइए, ले लिया आपने? मीडिया वाले भटनागर साहब आप भी आइए, नवागंज आ गए, नीलमा बहन जी आप भी आइए, काफी इन्होंने सहयोग किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गेस्ट दुआ साहब आइए। और यहाँ पर अगर नजर से और कोई कृपया चलो आ जाओ। Okay, special thank you for the Secretary Alora as well. He has made wonderful arrangements today. आजा बेटा, इधर आजा। इनके फोटो का इधर आगे से लो, किसकी फोटो करेंगे? किसका ठीक है, नहीं सभी की कहाँ ले? ये सभी बच्चे हमारे विजयी हुए हैं, सभी आ जाएं और प्रेसिडेंट साहब के साथ फोटोग्राफी करवाएं। आगे आ जाइए, छोटे बच्चे इधर आइए, सभी आइए, जल्दी आइए। ग्रुप पिक्चर होगी सारे पार्टिसिपेंट्स की, वॉलंटियर्स की, जो बच्चे नीचे बैठे हैं। सभी खाना खा के जाएंगे और सभी से निवेदन है कि खाना बिल्कुल उत्तर प्रदेश राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। क्या इस पर ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हमारे जितने बच्चे हैं जो
दयालबाग के साथ एसोसिएटेड हैं या दयालबाग के स्कूलों में पढ़ते हैं या हमारे पूरे यूपी रीजन में हैं और रीजन में हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, बिहार में है, पंजाब में है, इन सब रीजन्स के बच्चों ने इस आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। प्रोग्राम का प्राइमरी थीम यह है कि नॉलेज फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों को ज्ञान कैसे प्राप्त हो और उनका 2 दिन का प्रोग्राम देखा, इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को महसूस हुआ है कि भाई बच्चे कितनी तरह सुरेखा यादव जी बात कर रही हैं क्या प्रेसिडेंट इस साहब तरह से। के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे क्या? ये प्रोग्राम रेगुलरली होंगे। अब हमने जो हिदायत दी है रीजन्स को कि ये जो भी एक तो ये क्लासरूम के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को एक थीम के ऊपर बताया जाता है। बच्चों को भी 3 कैटेगरी में बांटा है, मिडिल तक के बच्चे, मिडिल से हाई स्कूल के बच्चे और सीनियर कैटेगरी के बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं। तो इनको अलग अलग इनके सेशन होते हैं, हफ्ते में एक बार होता सेशन, और हर बार एक टॉपिक या 2 टॉपिक के ऊपर इनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जहाँ पे बच्चों को काफ़ी जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न होती है कि और जाने ये क्या चीज़ है। और ये फोकस यही है कि बच्चे अपने हाथ से प्रोजेक्ट्स बनाएं, उन चीज़ों के बारे में मॉडल्स बनाएं, उनको यूज़ करें ताकि जो भी इनको बताया जाता है उसको ये अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उसको इंटरनलाइज करें, उसको समझें और अपनी एनवायरनमेंट में, अपने परिप्रेक्ष्य में उसको अप्लाई करें। देखें कि इनके इमीडिएट एनवायरनमेंट में कैसे है, लार्जर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, स्टेट लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे देखें, ग्लोबल लेवल पे देखें या ब्रह्मांड के लेवल पे देखें, तो वो जो भी मुद्दा पढ़ रहे हैं उसका पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आयाम कौन कौन से हैं, उन सारे आयामों के बारे में बच्चों को हम इंकरेज करते हैं कि जो भी उनके सामने चीज़ आई है उसको हर आयाम से देखें, समझें, उसके बारे में बातचीत करें, चिंतन मनन करें और बाद में अपने लिखें, उसको अपने नोट्स बना के रखें ताकि इस प्रकार धीरे धीरे वो अपना पूरा सॉर्ट ऑफ, जैसे अब विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया बनता है, ये बच्चे अपने डाटा की, अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर धीरे धीरे अपना ही ज्ञान का भंडार बनाते जाएंगे। जैसे बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लाइफ में जाएंगे, सिविल सर्विसेज के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये बच्चे बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे। क्या इंटरनेशनल ब्रांचेस भी इसमें जुड़े ही हैं? इंटरनेशनल ब्रांचेस भी इसमें जुड़ेंगे। अच्छा, जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। पहले ये यूपीआरएस का है, अब नेक्स्ट इंडिया और फिर इंटरनेशनल। और बाकी वो अपने अपने लेवल के ऊपर कर रहे हैं। हमने सारे रीजन्स को इनकरेज किया है। हमारे 11 रीजन इंडिया में है, 5 दूसरे देशों में है। सर रीजन्स को हमने इनकरेज किया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करें। लास्ट ईयर इनको हमने पत्र लिखा था, हमें जैसे गाइडेंस थी उस बेस के ऊपर पत्र लिखा, उस पत्र को इन्होंने इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया। ये धीरे धीरे और इसके अंदर निखार आता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे, तो एक बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे और अपने अंदर उसको समा पाएंगे। अभी आप शायद ये तो सत्संग से जुड़े हुए बच्चों के लिए है, क्या आप बाहर के गैर सत्संगी लोगों को भी इस तरह से इंकरेज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे जितने स्कूल हैं, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्कूल हैं और इंडिया मतलब यहाँ आगरा में है, आगरा के बाहर है, हर जगह के ऊपर इस प्रकार के प्रोग्राम हम कुछ फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी करते हैं, लेकिन अब हम उसको और भी एक्सपेंड। आपका कहना यह है कि आपके यहाँ नॉन सत्संगी बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो फिर आगे अपने क्षेत्र में ले जाएं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बहुत नॉन सत्संग, हमारे जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो 90-95% बच्चे तो नॉन सत्संगी हैं। वो सारे बच्चे हमारे और हर धर्म के बच्चे हैं, सब धर्म के हैं, सब जात के हैं, सब लड़के लड़कियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेजेस में, तो वो सारे बच्चे इस चीज़ को एक वे ऑफ लाइफ के तौर के ऊपर उसको अपनाएंगे और अपने और उनकी इससे लर्निंग और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सूद साहब, आपने हमें टाइम दिया अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके, और आगे हम फिर और वीडियो दिखाएंगे। ये सूद साहब का इंटरव्यू था हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अरे ये स्वामीनगर की है, हम लोग स्वामीनगर के लोग हैं, इसकी बात नहीं, हम पुराने हैं। तो कोई सवाल पूछिए ना उनसे, सवाल पूछिए। सवाल नहीं, आप यहाँ चीफ गेस्ट रहे, सूद साहब, प्रेसिडेंट साहब, आपके हस्बैंड हैं, आप भी साथ आए, आपको कैसा लगा यहाँ का? देखो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था
और बच्चों का ये फर्स्ट वेंचर था, उन्होंने बहुत अच्छे से करा। एंड द वेरी फैक्ट कि 350 बच्चे जैसे जो पार्टिसिपेट करा है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। पिछली बार ही साल में जो है 50 के आसपास बच्चों की सूचना थी हमारे पास जी, और अचानक से एक साल में ये इतना इंक्रीज कैसे हुआ? इसीलिए कि प्रोजेक्ट्स हुए, बच्चों को कुछ करने को मिला, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे, मेंटर्स हो गए इन बच्चों के, तो वो सत्संग हॉल आने लगे। जैसे उन्होंने कहा कि बसंत जैसी प्रिपरेशन हो रही है, बच्चे उस तरह लगे हुए। तो वेरी गुड वे ऑफ डायरेक्टिंग चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन और समथिंग टू लर्न ऑल्सो। प्रोजेक्ट भी हो गया उनका। थैंक यू सो मच। विज्ञान और समाज पर आधारित ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस पर आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी, तमाम चीज़ें सामने आई। गुरस्वरूप सूद साहब ने भी इसकी पूरी व्याख्या की कि ये सब चीज़ें हम क्यों करा रहे हैं और इसका क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसमें सत्संगियों के अलावा जो गैर सत्संगी लोग भी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि हम ब्रांचों में तो अपने सत्संगी बच्चों से ही काम लेते हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस हैं, पूरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ख़ासतौर पर वहाँ छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके लिए भी ये एक प्रेरणा बनेगी और उसमें भी कार्यक्रम होंगे। इसके ज़रिए हम जो हमारे गैर सत्संगी लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा और उन्हें जीवन को कैसे जिया जा सकता है ये सारी चीज़ें वो सीख सकेंगे। हमारे छात्र जगत के लोग जब यहाँ से यूनिवर्सिटी पास करके जाएंगे तो वो सारी चीज़ें अपने फैमिली में, अपने गांव में इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपनी टिप्पणी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।